Bismillahirrahmanirrahim. My name is Samya Sarwar. I am Institute of Southern Punjab. Today I am going to give a lecture on thinking and reasoning, which is related to introduction to psychology. It takes only 10 to 15 minutes. If you have any kind of question and query related to this topic, you may ask. I will be pleased to give you answers. So let's start. First of all, introduction about thinking. People think that's obvious. Humans are rational beings, or rationality consists in our ability to think and reason. It is because of our capacity for better thinking that we are superior to other animals in learning, in making adjustment. अब जो थिंकिंग है वो आपको क्या कर रही है, एक तो सुपीरियर बना रही है आपको बाकी एनिमल से और बाकी जो भी स्पीशीज होती हैं उनसे. ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ आवर waking hours, even when we are asleep and dreaming, we are thinking what you thinking about right now. अब आपकी थिंकिंग जो है वो हर टाइम वर्क कर रही है. अगर आप वर्किंग आवर्स की बात करें या आप सो रहे हैं या आप ड्रीम्स देख रहे हैं, तो ड्रीम्स में भी क्या है कि आपकी बैक पे थिंकिंग इन्वॉल्व है. जो सारा दिन में आप सोचते हैं वही आपके ड्रीम में भी आता है. तो इस टाइम आप क्या सोच रहे हैं, इस टाइम आप अगर इस टाइम लेक्चर सुन रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि लेक्चर के अकॉर्डिंग हम थिंकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई भी जो चीज़ है वो आपके माइंड में आ रही है जो कि आप सोच रहे हैं. Here comes definition of thinking. Thinking is an activity concerning ideas symbolic in character initiated by a problem or task which the individual is facing, involving some trial and error but under the directing influence of that problem and ultimately leading to a conclusion or solution of a problem. अब ये definition है, ये दी थी वॉरेन ने. Thinking is the organization and recognition of current learning in the present circumstances, which is with the help of learning and past experiences. And thinking is a perceptual relation which provides for the solution of the problem. अब जो different scientists या philosophers हैं उन्होंने thinking की जो definition है वो different दी है अपनी perception के according. अब जो perception है उसमें भी thinking involve है. Here comes nature of thinking. Thinking, it is essentially a cognitive activity. It is always directed to achieve some end or purpose. It is described as a problem solving behavior. अब जो thinking cognitive activity है, cognition में आपकी क्या इन्वॉल्व है, थिंकिंग इन्वॉल्व है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो एक cognitive activity है जिसमें आपकी cognition इन्वॉल्व है. और ये क्या है कि किसी भी पर्पस को पूरा करने के लिए आप उस चीज़ को सोचते हैं, फिर देन स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को लेकर चलते हैं, देन आप अपने गोल को अचीव कर लेते हैं. और ये क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर है, जो आपका थिंकिंग पैटर्न्स हैं वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर रहे हैं. इट इज़ अ सिंबॉलिक एक्टिविटी. इट इज़ अ मेंटल एक्सप्लोरेशन इंस्टेड ऑफ मोटर एक्सप्लोरेशन. इट कैन शिफ्ट वेरी रैपिडली. इट इज़ इंटरनल एक्टिविटी. अब जो थिंकिंग है एक तो आपकी इंटरनल एक्टिविटी है और ये शिफ्ट जो है वो जल्दी हो जाती है. फॉर एग्जांपल, अगर आप अकेले बैठे हुए हैं तो आप एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर उसी टाइम पे कोई और इवेंट होने लग जाता है तो आपकी थिंकिंग जो है फ़ौरन से शिफ्ट होकर दूसरे इवेंट पे चली जाती है. या फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं, आप लेक्चर सुन रहे हैं, तो आपकी जो थिंकिंग है वो कहीं और भी जा सकती है. फिर आपको जो है अटेंटिव करना पड़ता है कि आप इस टाइम क्लासरूम में बैठे हैं. तो इस तरह जो आपकी थिंकिंग का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा रैपिड है, शिफ्ट हो जाता है फ़ौरन से. इट इज़ अ मेंटल एक्सप्लोरेशन. अब ये एक मेंटल एक्सप्लोरेशन है कि हम किसी भी पर्टिकुलर फिनोमेना के बारे में अपनी एक मेंटल इमेजरी बना रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, उसका एक पैटर्न बना रहे हैं अपने माइंड में. Here come some types of thinking. First of all, perceptual or concrete thinking. Second one is conceptual or abstract thinking. And then creative thinking, then logical thinking and reasoning. Fifth one is problem solving, and sixth one is convergent versus divergent thinking. First of all, perceptual or concrete thinking. It is based on perception. Perception is a process of interpretation of sensation according to one's experience. अब जो आपकी परसेप्चुअल थिंकिंग है वो किस पे बेस करी है, आपकी परसेप्शन पे. अब आप परसेप्शन जो है वो आपका एक परसेप्चुअल प्रोसेस है, वो किसके थ्रू हो रहा है, आपके सेंसेस के थ्रू हो रहा है. आप अपनी सेंसेस के थ्रू जो डाटा को गेट कर रहे हैं, देन उन चीज़ों को परसीव कर रहे हैं कि वो किस तरह से ओकर हो रही हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड कॉन्क्रीट थिंकिंग एज इट इज़ कैरिड ओवर द परसेप्शन ऑफ एक्चुअल और कॉन्क्रीट इवेंट्स. It is one-dimensional and literal thinking which has limited use of metaphor without understanding manners of meaning. Being the simplest form of thinking, small children are mostly benefited by the type of thinking. The second type is conceptual or abstract thinking. It does not require the perception of actual objects or events. It is also called abstract thinking as it makes the use of concept or abstract ideas. It is superior to conceptual thinking as it encompasses efforts in understanding and help with discovery and invention. It is ability to appreciate manners of meaning. It is multidimensional thinking
with the ability to use metaphors and hypotheses appropriately. Language plays an important part in conceptual thinking. अब कॉन्सेप्चुअल को आपके इसके मीनिंग से पता लग रहा होगा कि आपका जिसके बारे में एक कॉन्सेप्ट हो. फॉर एग्जांपल आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लें, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं तो आप इसकी बात करें, तो अगर इसके बारे में आप कोई भी थिंकिंग है आपकी कि इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में हम कौन कौन सी जो एरियाज़ को हम हाईलाइटेड एरियाज़ हम पढ़ सकते हैं, तो उसके बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो ये क्या है, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग है कि आपका एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है कि इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं. Then third type is creative thinking. It refers to the ability for original thinking to create or discover something new. It is ability to integrate the various elements of the situation into a harmonious whole to create something new. In other words, cognitive activity directed towards some creative work refers to the creative thinking. Creative thinkers are great boon to society as they enrich the knowledge of mankind. The creative thinking tries to achieve something new to produce something original and something unique. अब क्रिएटिव थिंकिंग की अगर बात करें कि आप कोई भी एक पर्सन है वो इतना क्रिएटिव है कि वो अपनी जो इमेजिनेशन है उसको इतना क्रिएटिव बना लेता है कि उसके अकॉर्डिंग फिर वो वर्क करके एक क्रिएटिविटी को क्रिएट कर लेता है. अब उसमें क्या है कि क्रिएटिव थिंकिंग में जो थिंकिंग पैटर्न है वो किसी भी पर्टिकुलर थिंग के बारे में हो सकता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हो सकता है जिसके बारे में वो पर्सन क्रिएटिव. Then logical thinking and reasoning. It is cognitive process of looking for reasons for beliefs, conclusions, actions और feelings. अब लॉजिकल थिंकिंग में जो है जिसको हम रीजनिंग भी कह सकते हैं, जिसमें हम रीजंस को तलाश करते हैं कि अगर हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन को हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो इसके पीछे क्या ऐसे कंक्लूजन्स हैं, क्या ऐसे एक्शन जो हैं जो परफॉर्म हुए हैं जिसकी बेस पे हम इस को बेस्ट पॉसिबल जो आउटकम है उसको कंसीडर कर सकें. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस, कि एविडेंस की बेस पे हम जो है कंक्लूजन को ड्रॉ कर रहे हैं कि अगर हमने ये बात की है तो ये एक लॉजिकल बात है. जो किसी भी चीज़ या पॉइंट में हम जब लॉजिक देना स्टार्ट कर देंगे तो वो हमारी क्या होगी, लॉजिकल थिंकिंग होगी. इट इज़ फॉर्म ऑफ कंट्रोल थिंकिंग इन विच द थॉट प्रोसेस इज डायरेक्टेड कॉन्शियसली टुवर्ड द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. An individual tries to solve a problem by incorporating two or more aspects of this past experiences. It is classified into inductive reasoning and deductive and abductive reasoning. First of all, inductive reasoning. This is the process of reasoning from part to the whole. For example, the generalization. It is carried out generally within the field known as informal logic or critical thinking. अब इंडक्टिव रीजनिंग में अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में रीज़न दे रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं, तो पार्ट टू दी होल की तरफ जाएंगे. पहले उसका पार्ट की तरफ, फिर देन एज अ होल उसकी जो रीजनिंग है वो हम करेंगे. एंड डिडक्टिव रीजनिंग, दिस मूव फ्रॉम द होल टू पार्ट. अब उसको एज अ होल देख के देन हम उसके सब पार्ट्स की तरफ जाएंगे. फ्रॉम जनरलाइजेशन टू अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मल लॉजिक इज डिस्क्राइब्ड एज द साइंस ऑफ डिडक्शन. Then abductive reason is a cognitive process often involves both inductive and deductive arguments. अब जो inductive and deductive both जो arguments हैं as a whole और as a part, उन दोनों के जो इसमें है features involved हैं उसको हम कहते हैं abductive reasoning. Then problem solving. It is a tool, skill and a process. It is tool because it can help you solve an immediate problem or to achieve a goal. It is a skill because once you have learned if you can use it. It is also a process because it involves taking a number of steps. You can engage in problem solving if you want to reach a goal and experience obstacles on the way. At the point at which you come up against a barrier, you can engage in a problem solving process to help you achieve your goal. अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है कि एक पूरा प्रोसेस है जिसके स्टेप बाय स्टेप हम चल के एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैथ प्रॉब्लम है उसमें जो है क्या होगा कि आप पहले उसको समझेंगे कि इसमें हमारे पास कितनी ब्रैकेट्स हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, लॉन्ग ब्रैकेट्स हैं, और हमने किस तरह इन ब्रैकेट्स को ओपन करते जाना है, देन हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. Every time you use a problem solving process, you are increasing your problem solving skill. A 7-step problem solving cycle is include identify the problem first of all, then explore the problem, and then set goals about problem, then look at alternatives, then select a possible solution, then implement a possible solution, and then evaluation. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इस प्रॉब्लम की नेचर क्या है, ये किस पर्टिकुलर फिनोमेना से रिलेट कर है.
देन आप एक्सप्लोर करेंगे उस प्रॉब्लम को, देन उसके बारे में गोल्स को सेट करेंगे कि हमने कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बात करें कि डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि आप कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस यूज़ कर रहे हैं कि हमने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो इसके अगर हम इस प्रोसेस के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे तो इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ये होंगे और जो डिसएडवांटेजेस हैं उनकी लिस्ट ये है। तो अगर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं तो आप उस प्लान को रहने देंगे, तो उसके बारे में आप गोल सेट कर रहे हैं, और अगर एडवांटेजेस ज़्यादा हैं आप उसको इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं, देन आप उस जो प्लान है आपने बनाया है उसको आप पिक कर लेंगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देन लुक एट अल्टरनेटिव्स। देन अगर वो आपका जो टेक्निक है वो सही काम नहीं कर रही, आपने जो उसके बारे में प्लान बनाया है उसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं, तो आप क्या करेंगे, प्लान बी यूज़ करेंगे। देन सेलेक्ट अ पॉसिबल सोल्यूशन। फिर जो बेस्ट पॉसिबल उसका आउटकम होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, देन उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, देन उसको एवेलुएट करेंगे। एवेलुएट किस तरह से करेंगे कि आप उसको एनालाइज करेंगे, एनालिसिस के थ्रू उसको एवेलुएट करेंगे कि ये जो है आपका बेस्ट पॉसिबल आउटकम है या नहीं। Then here come convergent versus divergent thinking. Convergent thinking is a cognitive process of information around a common point, an attempt to bring thoughts from different directions into a union for common conclusion. And divergent thinking starts from a common point to move towards into a variety of perspective. अब convergent में क्या है कि एक बेसिक पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे और लॉजिकल की तरफ जाएंगे, और डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या है कि कॉमन पॉइंट से स्टार्ट करके आप जो है जो इम्पोर्टेंट वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव है उसकी तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल टीचर यूज द कॉन्सेप्ट एज अ व्हीकल टू प्रमोट डाइवर्स और यूनिक थिंकिंग अमंग स्टूडेंट रेदर देन अ कॉमन व्यू। अब जो टीचर हैं वो क्या करेंगे कि आपको एक फ्लो चार्ट के ज़रिए से या डायग्राम्स के ज़रिए से समझाने की कोशिश करेंगे। पहले आपको वर्बली समझाएंगे, देन उसके बाद डायग्राम्स को शो करेंगे, देन आपको पावर पॉइंट या प्रोजेक्ट पे दिखा के उसको समझाने की कोशिश करेंगे। हियर्स कम अल्टरेशन इन थिंकिंग। First of all, psychosis, and second one is delusion. Psychosis related is a mental disorder in which reality testing is not intact. Behavior may violate gross social norms. It is just opposite to neurosis in which reality testing is intact and behavior may not violate social norms. Many psychiatric disorders such as schizophrenia, mania, depression come under psychosis. अब जो schizophrenia है जिसमें आपको delusions and hallucinations होते हैं, मीन्स आपको कोई भी जो आवाज़ें हैं जो कि एक्चुअल में नहीं होती वो सुनाई भी दे सकती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि आपको दिखाई भी देती हैं। और डिप्रेशन और इस टाइप की जो डिसऑर्डर्स हैं वो आपके साइकोसिस में आते हैं। इट इंक्लूड वेरियस डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग। अब इसमें ये इसलिए साइकोसिस थिंकिंग के साथ इस तरह से रिलेट कर रहा है कि अगर आप स्किज़ोफ्रेनिया की बात करें कि आपको कुछ इस तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो आप हो सकता है कि उसके बारे में एक पर्टिकुलर थिंग या ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपको वो डेलूजन्स और हेलुसिनेशंस आ रहे हैं। देन डेलूजन्स, it is false, persistent, irrational belief not shared by a person of same age, race, education, standard which cannot be altered by logical arguments. अब जो ये फॉल्स आपका इरेशनल बिलीफ होता है किसी भी पर्टिकुलर थिंग के बारे में हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बारे में हो सकता है, वॉइसेस के बारे में हो सकता है, इमेजेस के बारे में हो सकता है। डिल्यूजन्स आर क्लासिफाइड इनटू persecutory delusion, then delusion of reference and delusion of influence, delusion of guilt. अब delusion of reference क्या हो सकता है कि आपको ये लगे कि आप कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, मीन्स आप किसी भी पर्सनालिटी के साथ अपना रेफरेंस दे रहे हैं कि मैं वो हूँ। अब delusions of influence भी हो सकता है, delusion of guilt भी हो सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर गिल्ट की वजह से आपको वो delusions हो रहे हैं। एंड अब इस टाइप के जो डिल्यूजन्स हैं जो इन सब चीज़ों के साथ रिलेट कर रहे हैं, इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू फिनोमिना कि किस कैटेगरी में वो ऑकर हो रहे हैं। लेकिन ये क्या है कि एक फॉल्स बिलीव है, इरेशनल बिलीव है जो कि आप किसी भी चीज़ के बारे में बना रहे हैं। हियर्स कम रीजनिंग। Reasoning is stepwise thinking with a purpose or goal in mind. Reasoning is combining past experiences in order to solve a problem which can't be solved by mere reproduction of earlier solution. अब हमने थिंकिंग क्या है कि एक जो भी चीज़ आपके माइंड में आ रही है वो है। अब रीजनिंग क्या है कि उसके साथ चीज़ों को रिलेट करना। वो आपके पास एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, पास आपका नॉलेज हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से आप उसको अपनी थिंकिंग को रिलेट कर रहे हैं कि ये रैशनल चीज़ है, मीन्स इसके साथ कोई रीज़न या लॉजिक है जो मैं सोच रहा हूँ।
Nature of reasoning: it is form of logical thinking. It is characterized by rigid control that keep in the close contact with reality. It is always directed toward the achievement of a specific goal. Reasoning does not occur unless a question has arises from which there is no ready answer. अब रीजनिंग क्या है कि एक लॉजिकल थिंकिंग है और ये क्लोज टू रियलिटी है कि आप जो है किसी भी चीज़ के बारे में अगर कोई आइडिया दे रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, तो वो क्या है, किस पे बेस कर रही होगी, वो एक रियलिटी पे बेस कर रही होगी। क्यों? क्योंकि उसमें आपके पास एक्सपीरियंसेस जो है वो इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल अगर वर्क प्लेस में कोई इस तरह का डिसीजन लेना पड़ता है तो उसमें क्या होगी, अगर रीजनिंग इन्वॉल्व होगी तो वो डिसीजन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि वो पास एक्सपीरियंसेस में उसकी बेस पे जो डिसीजन दिए गए थे उसकी बेस पे वो लिया जा रहा है। Here come some types of reasoning. First of all, inductive reasoning, and second one is deductive reasoning. Inductive reasoning proceeds from specific facts or observation to general principle. For example, iron expand when heated. And deductive reasoning is proceed from general principle to specific situation. अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इंडक्टिव जो है वो स्पेसिफिक से जो है जर्नल प्रिंसिपल की तरफ लीड करती है और डिडक्टिव रीजनिंग जो है जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जा रही है। वो इंडक्टिव स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जा रही है और ये जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जा रही है। फॉर एग्जांपल, मैटर एक्सपैंड व्हेन हीटेड, आयरन इज अ फॉर्म ऑफ मैटर एंड दस एक्सपैंड व्हेन हीटेड। अब स्पेसिफिक से जर्नल ये है कि आयरन एक्सपैंड व्हेन हीटेड, जो आयरन है वो एक्सपैंड हो जाता है जब उसको हीट मिलती है, ये एक स्पेसिफिक हमने बात की है। देन जर्नल बात ये है कि जब वो गर्म होता है, व्हेन हीटेड। लेकिन अगर हम बात करें कि जर्नल टू स्पेसिफिक करना है तो हम पहले क्या करेंगे, मैटर एक्सपैंड्स, तो जो एक्सपैंड वाली बात है वो हम पहले कर देंगे, मीन जर्नल बात। देन उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम ये कहेंगे कि आयरन इज अ फॉर्म ऑफ मैटर दैट एक्सपैंड व्हेन हीटेड, फिर उसके बाद हम स्पेसिफिक बात करेंगे। That's all from today's lecture. If you have any kind of question you may ask. Thank you so much.